Now, हमारे पास the last stage of respiration is oxidative phosphorylation. What happens in oxidative phosphorylation is that it takes place in the inner membrane of the mitochondria. So, this is the inner membrane, this is the outer membrane, and between these two membranes, we have the intermembrane space. Can you guys tell me what is the characteristic of the inner membrane of mitochondria? What's something unique about mitochondria's inner membrane? Something that I haven't drawn in the structure. What structure is missing in this diagram? Right. ATP synthase. Acha. Yes, Anka, mitochondria is a double membranous structure. It has one membrane and then it has another membrane and the other membrane is folded. You can see कि ये हमारे पास एक flat membrane नहीं है. It is a folded membrane. So the inner membrane is folded. And Musfira, the folds of the inner membrane are not cisternae. हमारे पास Golgi, RER एंड SCR उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इन तीन ऑर्गेनेल्स की उनकी मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्ने बुलाते हैं and the inner membrane of mitochondria is called the cristae. The inner folds of the mitochondria are called the cristae. So cisternae is for RER, SCR and Golgi and cristae is for the inner mitochondrial membrane. ठीक है? Yeah, oftentimes ये confusion arise होती है, that's fine. अच्छा, सो एज अहमद मेंशन कि हमारे पास एटीपी सिंथेज मिसिंग है. एटीपी सिंथेज का एक और नाम है, दिस इज हाउ इट्स डिफाइंड, विच इज द स्टॉक्ड पार्टिकल. तो वो हमारे पास एटीपी सिंथेज ही होता है. किस तरह से? सो देयर आर अ लॉट ऑफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास देयर इज अ टेल एंड देयर इज अ हेड. ठीक है, सो ऐसे आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे इनर मेम्ब्रेन में जिनको हम स्टॉक पार्टिकल्स बुलाते हैं. Now you can see that the stalked particles have a tail and they have a head. The head of these stalked particles, so ये head है, this head is essentially an enzyme and that enzyme is known as ATP synthase. The enzyme that hydrolyzes ATP is ATPase. Yes. Now, अब आप लोग एक और चीज भी देख सकते हो कि हमारे पास these stalked particles have a tail as well. कैन यू ऑल सी कि हमारे पास स्टॉक पार्टिकल को, ये जो ये लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इनटू द हेड विच इज द सर्कुलर राउंडेड पार्ट एंड इनटू द टेल. Now the head is an enzyme which is your ATP synthase and this is where the ATP synthesis would take place. On the other hand, we also have a tail of the stalk particle of this lollipop structure. This tail is actually a transport protein. You guys have studied channel proteins and carrier proteins, right? Can you guys tell me channel proteins and carrier proteins क्या करता है? What are transport proteins involved in? Very good. So they help the movement of ions and charged molecules across a membrane जो कि directly phospholipid bilayer से diffuse नहीं कर सकते, उनकी facilitated diffusion कराते हैं. Mishal has mentioned that specific molecules to pass through. Yes, channel proteins and carrier proteins are specific in nature. सो हमारे पास जो ये टेल होती है स्टॉक पार्टिकल की, इट इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर हाइड्रोजन आयंस. इट इज बेसिकली अ चैनल प्रोटीन फॉर हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ द माइटोकॉन्ड्रिया लुक्स लाइक. हमारे पास टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, we should be aware of the inner membrane, that the inner membrane is folded and the inner membrane has these stalked particles. The stalked particles का जो head होता है, that is the enzyme ATP synthase and the tail of these stalked particles is a channel protein for hydrogen ions.
Now, हमारे पास one last thing, and then we would one by one discuss the process of oxidative phosphorylation. We need to know the concentrations of hydrogen ions in each of these areas. हमारे पास in a mitochondria we have two spaces. एक हमारे पास जो स्पेस होती है वो intermembrane space होती है. We have one space, one compartment over here. This is your intermembrane space. And the other compartment is the matrix. हमारे पास जो दूसरा कंपार्टमेंट होता है दैट्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ना हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है इन द मैट्रिक्स एंड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दैट इज डिफरेंट, which is the matrix has low hydrogen ion concentration and the intermembrane space has a high hydrogen ion concentration. Are you guys with me till here? Everything's clear? Any questions? Okay. Now, if we zoom in, let's say we zoom into the mitochondria and मैं इस inner membrane को enlarge कर देती हूँ. So this gray line is the inner membrane. ये मेरे पास एक phospholipid bilayer है. So ये मेरे पास पूरी phospholipid bilayer है basically. ठीक है, this is a membrane. Now this inner membrane has stalked particles. ये हमने stalked particles देखे थे. So this is our stalked particle. ये इसकी tail है and you can see कि हमारे पास इसमें एक पूरा channel है जिसके through हमारे पास hydrogen ions move करेंगे. Now this is the tail and this is the head. This head is what? This head is your ATP synthase. Now आपको एक और चीज नजर आ रही होगी which is your these four circular structures. Now these four circular structures are four protein complexes. So ये जो चारों हमारे पास circles आपको नजर आ रहे हैं, these four circles are basically your protein complexes. ये चारों different proteins हैं. You don't need to know the names of these proteins. These proteins are embedded within the inner membrane. So ये embedded हैं, ये located है inner membrane के अंदर. Now, these proteins have an essential role in the oxidative phosphorylation. How so? हमारे पास we just discussed कि at the end of Krebs cycle हमारे पास in total 10 NADH के molecules थे, 2 FADH2 के molecules थे. And we just talked about the fact that the NADH and the FADH2s they are basically protons and electron carriers. So जो NADH है, जो reduced NADH है, it is a proton and electron carrier, right? So what happens is that this NADH and even the FADH2, it is the same for FADH2 as well. This NADH2 is oxidized at the first protein complex. And अगर NADH is being oxidized, it means कि हमारे पास NADH is going back to NAD plus, releasing its two electrons and hydrogen atoms. हमारे पास NADH basically undergoes oxidation, and as the result of oxidation, it goes back into its NAD plus form. It releases its two electrons and the two hydrogen atoms. Now, हमारे पास basically what happens is these electrons enter into this protein, and then one by one they move from one protein complex to another.
So the electrons are basically jumping from one protein complex to another. Now, electron is a charged particle. हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल की केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बुलाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम इन टर्म्स ऑफ सर्किट्स बुला रहे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होते हैं। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सो दे possess अ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। Now, when these electrons are moving from one protein complex to another protein complex, during this jumping process, they are losing their energy. इसकी एग्जाम्पल ये है दैट फॉर एग्जाम्पल हम जब स्किपिंग कर रहे होते हैं, जब हम स्किपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में हमारी जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। सो इस पोजिशन पे द इलेक्ट्रॉन हैज इट्स हाईएस्ट एनर्जी। बट जैसे जैसे हम लोग स्किपिंग कंटिन्यू कर रहे होते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स लो होना शुरू होते हैं। बिल्कुल उसी तरह when this electron is jumping from one complex to another, its energy is being lost. Now, इधर हम एक चीज रिकॉल करते हैं। ये हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इन द मैट्रिक्स हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लो, एंड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हाई। Now, if the hydrogen ions have to move from the matrix all the way up into the intermembrane space, would they move through active transport or would they move through diffusion? Through which process would this movement of protons from matrix to the intermembrane space take place? Active transport. हमारे पास the protons are moving from a low concentration gradient to a high concentration gradient. So when we're moving from low to high, हमारे पास active transport होना चाहिए. Now, active transport is an energy consuming process. Now, over here, we would not derive the energy from ATP, क्योंकि हम जो ये पूरा process कर रहे हैं, जो पूरी oxidative phosphorylation है, the purpose of this process is to produce ATP. So यहाँ पर जो active transport होगा of hydrogen ions from the matrix into the intermembrane space, उसमें हम जो एनर्जी यूज करेंगे वो हम एटीपी से जनरेट नहीं करेंगे, या वो हम एटीपी से नहीं ब्रेक करके रिलीज करवाएंगे। Instead, हमारे पास when these electrons were moving from one protein complex to another, they were losing their chemical potential energy. उनकी एनर्जी लूज हो रही थी। वी नो कि हमारे पास एनर्जी ना क्रिएट हो रही होती है ना डिस्ट्रॉय हो रही होती है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स। तो हमारे पास जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने लूज की थी while they were moving from one complex to another, that energy is used to transport hydrogen ions or protons from the matrix into the intermembrane space. अभी तक कोई क्वेश्चन है? Anything? Let me just go through the chat. Why is there a high concentration of protons in the intermembrane space? Okay. हमारे पास जो protons होती हैं, they are pumped continuously from the matrix into the intermembrane space. मेरे पास जो protons की movement हो रही होती है, वो हमारे पास from the matrix into the intermembrane space हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है to ensure कि यहाँ पर हमारे पास जो protons हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट हाई रहे। द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड with protons, यानी कि we need to create this high concentration of protons in the intermembrane space। उसकी वजह ये है that हमारे पास प्रोटॉन्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन थी प्रोटॉन्स की इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट वी आर पंपिंग मोर प्रोटॉन्स। तो हमारे पास ओवरऑल जो प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाउ प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जब भी किसी चीज का एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी एक इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी होती है। डू यू ऑल एग्री? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है।
एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पर हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास कम पॉजिटिव चार्ज है. सो इज देयर एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ओवर हियर? तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो रहा है. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में देयर इज अ हाई पॉजिटिव चार्ज, मैट्रिक्स में देयर इज अ लो पॉजिटिव चार्ज. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हमने क्रिएट कर लिया. एक जगह में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह में कम पॉजिटिव चार्ज है. दूसरा, क्या हमारे पास केमिकल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है? विद केमिकल्स व्हाट आई मीन इज, हमारे पास मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है. बिल्कुल करता है, बिकॉज एक जगह पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, एक जगह पे हाइड्रोजन आयंस कम है. तो हमारे पास ना सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, बल्कि हमारे पास एक केमिकल ग्रेडियंट भी है. आर यू गाइज ऑन विद मी? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी समझ आ गया और केमिकल ग्रेडियंट भी समझ आ गया कि क्यों जनरेट हो रहा है, क्यों बन रहा है. परफेक्ट. नाउ this thing, this tail of the stalked particle, what is the source of protons in the matrix? अभी हमने बात की थी क्या कहते हैं NADH की और FADH2 की, वो स्प्लिट हो रहे थे. Were they splitting? हमारे पास ये प्रोटॉन कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे. So the protons and electrons are coming from there. ठीक है. एंड डेफिनेटली हमारे पास वैसे भी हमारी बॉडी में, हमारे सेल में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो हमारे पास मैट्रिक्स में जो ये प्रोटॉन्स आ रहे हैं, दीज प्रोटॉन्स आर बेसिकली द प्रोटॉन्स फ्रॉम द NADH2, सॉरी द NADH एंड द FADH2s. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई थी ना ओवर हियर एट द स्टेज. सो वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ NADH एंड FADH2s. हमारे पास जब भी क्रेब्स साइकिल होगी, जब भी ग्लाइकोलिसिस होगा, जब भी लिंक रिएक्शन होगी, हमारे पास प्रोटॉन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे. Yep. Oh, sorry. Your confusion is absolutely correct. This hydrogen atom would split into electrons. Yes, sorry. My bad. I skipped one step over here. I'll correct this. This would become NAD plus and hydrogen atoms. These hydrogen atoms would split into protons and two electrons. My bad. Thank you so much, Ahmed, for pointing this out. What point? Okay, let's go over this again. Energy and intermembrane not able to make connection between both points. Energy and intermembrane space proton gradient. Okay, let's go over it again. हमारे पास मैट्रिक्स में लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, राइट? एंड हमारे पास हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट? हमारे पास एक केमिकल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है. एंड वी नो दैट हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दे आर बीइंग पम्प्ड from the matrix into the intermembrane space through active transport. Active transport is an energy consuming process. हमारे पास हाई क्यों होता है? हमारे पास अगर एक जगह ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, एक जगह कम प्रोटॉन्स हैं, तो हमारे पास वहां पर हाई होगा ना कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज यहाँ से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन्स यहाँ पर जा रहे हैं. तो मेरे पास जब एक जगह से दूसरी जगह चीज जा रही है, तो दूसरी जगह वो चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही होगी ना. ठीक है. So basically, from the matrix, the hydrogen ions have to go into the intermembrane space. Why is this happening? Comes in the next step. हमारे पास जो ये स्टॉक्ड पार्टिकल है, ये जो ATP सिंथेज है, ये जो मॉलिक्यूल है, दिस कैन रोटेट. ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास रोटेट कर सकता है. और ये कैसे रोटेट करता है या कब रोटेट करता है? हम सब ने यहाँ तक क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया दैट द हाइड्रोजन आयंस are at a high electrochemical concentration over here, and we have a low electrochemical concentration of hydrogen ions over here. मेरे पास this tail of the stalked particle is a channel protein which moves hydrogen ions. मेरे पास यहाँ पर facilitated diffusion होगी naturally. Do you all agree that facilitated diffusion of protons can take place? Now, हमारे पास प्रोटॉन्स का
एक चार्ज होता है, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा हम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट इससे यहाँ पे लिंक करेंगे। मेरे पास जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज की डेफिनेशन ये होती है दैट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन वन चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन द सर्किट टू द अदर। सो whenever a charged particle is moving, उसकी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चार्ज होती है। हमारे पास जो एनर्जी जब प्रोटॉन मूव करेगा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ दिस चैनल प्रोटीन, उसकी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी causes the rotation of this एटीपी सिंथेज। हमारे पास जो एटीपी सिंथेज है इट कैन रोटेट। ये रोटेट कब करती है? जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस मूव करती हैं थ्रू द चैनल प्रोटीन। एंड जब वो रोटेट करती है तो हमारे पास एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। व्हेन द ATP synthase rotates, that rotation causes the ADP and the inorganic phosphate to combine together and form ATP। और हमारे पास जब ये मूवमेंट हो रही होती है हाइड्रोजन आयंस की डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो हमारे पास केमी ऑस्मोसिस कहलाई जाती है। रोटेशन हमारे पास पूरी 360 डायरेक्शन में होती है ना। रोटेशन इज लाइक कंप्लीटिंग वन होल सर्कल। हमारे पास जो रोटेशन होगी दैट वुड बी अ कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी प्रोसेस एनी स्टेप विच इज अनक्लियर? अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे, बट एनीथिंग दैट यू गाइज वांट टू आस्क? फर्स्ट द प्रोटॉन्स इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन। यस, पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है अमर? फॉर विच रीजन? हमारे पास जब ये रोटेशन होती है, दिस रोटेशन इज एसेंशियल क्योंकि जब ये रोटेशन होगी एटीपी सिंथेज की तभी एटीपी सिंथेज कैन कंबाइन एडीपी विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है राहिमा? परफेक्ट। सो लेट्स गो ओवर द समरी स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास NADH जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब कि हमारे पास जो NADH है this becomes NAD plus and a hydrogen atom, and this hydrogen atom further becomes splits into hydrogen ions and electrons. Now हमारे पास जो ये electrons होते हैं they are moving from one ETC टू द नेक्स्ट, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में जंप कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग दिस जंपिंग प्रोसेस दे आर लूजिंग देयर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। This energy of electrons, which is lost, is utilized in moving these protons via active transport. हमारे पास जब प्रोटॉन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव कर जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स है वो और इंक्रीज कर जाती है। एंड इवेंचुअली हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं या जो प्रोटॉन्स हैं दे मूव डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से हमारे पास व्हाट हैपेंस? हमारे पास रोटेशन होती है हमारे एटीपी सिंथेज की, एंड ड्यूरिंग दैट रोटेशन एडीपी कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू प्रोड्यूस एटीपी। हमारे पास जब प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड है इन दिस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है। नाउ व्हाट इज अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स? बिफोर यू गाइस tell me about the proton motive force, can you guys tell me what is your understanding of force? What is force? How would you define force? ओके, F इक्वल्स टू एम ए, ये तो आप मुझे न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहे हैं। बेसिकली यस, समथिंग कॉजिंग एन ऑब्जेक्ट टू मूव। हमारे पास एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पर क्यों जनरेट हो रही है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पर इसलिए जनरेट हो रही है कि मेरे पास प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे हैं। डू यू ऑल एग्री दैट द प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स, दे आर इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन? तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है।
सिमिलरली हमने ये भी इस्टेब्लिश किया था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्यों? क्योंकि एक जगह पर हमारे पास um, ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह हमारे पास कम पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा प्रोटॉन्स भी हैं और हमारे पास यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी है। इन दो रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स being so high in the intermembrane space and because of this electric gradient being established, हमारे पास एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। This proton motive force is basically the energy of the protons, ठीक है? और ये proton motive force basically reason बनती है for the hydrogen ions to move down the concentration gradient। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स के क्रिएट होने की वजह से मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस दिस चैनल प्रोटीन। बिकॉज मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मेरी प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, हो रही है, हो रही है। मेरी प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, विच मीन्स मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। When there is a high hydrogen ion concentration, those hydrogen ions would move down the electrochemical gradient due to this proton motive force. Is this clear? Yes, हमारे पास जो प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और जो हमारे पास प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है वो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जनरेट हो रही है ना। प्रोटॉन्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आके खत्म तो नहीं हो रहे। दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑल्सो हैव सम एंडिंग पॉइंट। सो दैट एंडिंग पॉइंट हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे लिंक रिएक्शन हो, चाहे क्रेब्स साइकिल हो, हमने अभी तक ऑक्सीजन का रोल नहीं देखा। एंड अभी भी हमने जो पूरा प्रोसेस किया उसमें हमने ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में वेयर डज ऑक्सीजन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? हमें ऑक्सीजन किस पॉइंट पे चाहिए होती है? सो बेसिकली हमारे पास जो ऑक्सीजन है, व्हाट इट डज इज कि हमारे पास जो फाइनल प्रोटीन होता है, फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यहां पर ऑक्सीजन आती है एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन। नाउ ये एक मोलेक्युलर ऑक्सीजन है। मोलेक्युलर ऑक्सीजन का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट है, इट्स अ स्टेबल बॉन्ड। हमारे पास इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की क्यों जरूरत है? देयर इज नो नीड फॉर दिस मोलेक्युलर ऑक्सीजन टू एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये तो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो फिर ये एक्स्ट्रा टू इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या करेगी? So what it does is it not only accepts these two electrons, but it also accepts two hydrogen. Now why is it doing that? ये इसलिए ऐसा करती है so that हमारे पास एक water molecule बन सके। So one oxygen atom would accept two electrons, two protons to form one water molecule. If you're talking about the entire oxygen molecule, तो हमारे पास पूरा oxygen molecule would take up 4 electrons and 4 hydrogen ions to form 2 moles of water. तो हमारे पास जो water बनता है at the end of respiration, वो water कहाँ पे बन रहा होता है? वो इस stage पे water बनता है when oxygen acts as the final electron and proton acceptor। और जो हमारे पास respiration के end में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन से आ रही होती है। इज दिस क्लियर that how carbon dioxide or why carbon dioxide and water are the end products of respiration? Yes, you need to remember the proton motive force, जो पूरा oxidative phosphorylation का process है। This is how you need to know it in terms of the theory or the wording. So let's quickly go over them step by step. सबसे पहला स्टेप क्या था? हमारे पास, yes, we did this today. ओके, हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज आवर प्रोटॉन्स एंड
protons and electrons carrier, which are our NADH and FADH2s, being oxidized. हमारे पास oxidation से start होता है oxidative phosphorylation, and hence we have this term oxidative phosphorylation. So our proton carriers get oxidized at the first protein. When they get oxidized, हमारे पास hydrogen atoms produce होता है. These hydrogen atoms split to form protons and high energy electrons. हमारे पास जो ये high energy electrons होते हैं, they enter into the electron transport chain. Now, when they enter into the electron transport chain, one by one, when they're moving from one protein complex to the next, हमारे पास they are losing their energy. इसकी analogy या इसकी example ये है कि जब हम skipping start करते हैं तो हम बहुत high energy के साथ jump कर रहे होते हैं, but हमारे पास जब हम स्किप कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम बाय टाइम हमारी एनर्जीज डिक्रीज हो रही होती हैं. सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन जंप कर रहा होता है तो हमारे पास दैट इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. That energy is used to transport protons from the mitochondrial matrix into the intermembrane space, creating a proton motive force. Acha, if you guys are getting confused with the term proton motive force, you can use proton gradient. That is absolutely correct, and those are synonymous terms. आप proton gradient भी कर सकते हो. इससे आप लोग confused now. Fine. Just remember it as a proton gradient. That is also acceptable. They are basically synonymous terms. ठीक है? So you can call this the proton gradient as well. Proton gradient या proton motive force क्यों बढ़ रही है या क्यों create हो रही है? इसलिए because जो protons हैं they are being accumulated in the intermembrane space. Because intermembrane space में protons की concentration बढ़ रही है तो हमारे पास एक proton gradient या proton motive force generate हो रही है. अच्छा, हमारे पास the protons move down the electrochemical gradient from the intermembrane into the matrix via the tail of stalked particle. Why? Because this tail is actually a channel protein which can transport hydrogen ions. जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स मूव करते हैं अक्रॉस द स्टॉक्ड पार्टिकल, हमारे पास एक रोटेशन प्रोड्यूस होती है. जो ये रोटेटरी मैकेनिज्म है, यू डोंट हैव टू नो दिस रोटेटरी मैकेनिज्म, बट हमारे मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया सो दैट यू नो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है प्रोटॉन्स की, दैट एनर्जी कॉजेज अ रोटेशन, and due to that rotation the ADP and the inorganic phosphate combine to synthesize ATP. So the ATP synthase has to rotate for the synthesis of ATP. और वो कब होगा? जब हमारे पास प्रोटॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द टेल. ठीक है? दिस प्रोसेस जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से प्रोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं, दैट प्रोसेस इज known as chemiosmosis. It has nothing to do with water. It has nothing to do with the water osmosis. Chemiosmosis का क्या मतलब है? Osmosis में क्या होता है? Water जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में मूव कर रहा होता है, राइट? ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर इज मूविंग फ्रॉम अ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ लोअर वाटर पोटेंशियल. ओवर हियर केमी का मतलब है कि हमारे पास कोई केमिकल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. In this case, हमारे पास protons are moving from a high proton concentration to a lower proton concentration. That is chemiosmosis. एक second. What's the confusion? How is proton actively transported from matrix to intermembrane? Over here, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो मूव करता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, राइट अमर? दैट एनर्जी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस लॉस्ट एनर्जी. ठीक है? सो पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं. उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हम ड्राइव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन से विच आर जंपिंग अक्रॉस द ईटीसी. व्हेन दे आर जंपिंग दे आर रिलीजिंग एनर्जी. That energy is used to actively transport the protons from the matrix into the intermembrane space. Intermembrane space में ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा प्रोटॉन्स मौजूद है.
हम और प्रोटॉन्स वहां पर भेज रहे हैं, तो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। आर यू विथ मी अमर? तो हमारे पास जो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मूवमेंट होती है, दैट इज वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड उसकी एनर्जी आ रही होती है फ्रॉम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। Now, those protons would move down the electrochemical gradient from the tail of the stalked particle to the head of the stalked particle. That head of the stalked particle is the enzyme ATP synthase. जब हमारे पास वो movement होगी down the electrochemical gradient, जिसको हम chemiosmosis बुलाते हैं, chemiosmosis क्यों बुलाते हैं? हमारे पास protons are moving from a high concentration gradient to a low concentration gradient. वो प्रोसेस जिसमें लो टू हाई मूवमेंट हो रही, सॉरी हाई टू लो मूवमेंट हो रही है, दैट इज ऑस्मोसिस। यहाँ पर वाटर का ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, तो हम इसलिए सिंपली ऑस्मोसिस नहीं बोल रहे। प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? केमियोस्मोसिस बुला रहे हैं। सो केमियोस्मोसिस इज एसेंशियली द प्रोसेस in which the protons are moving from a high gradient to a low gradient. जब वो मूव करते हैं तो हमारी जो एटीपी सिंथेज है वो ज्वाइन करती है एडीपी को विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी, एंड दैट इज हाउ द एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स कंबाइन टुगेदर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। इज दिस क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी पॉइंट को लेके? Miss, could you like define chemiosmosis in मतलब in like दो तीन sentences? Okay. Chemiosmosis is the movement of protons from a higher concentration gradient to a lower concentration gradient. ठीक है? Okay, Miss. Down the And it is electrochemical gradient. through the ATP synthase or it's just like movement across the membrane? It is the movement through the channel protein. हमारे पास ATP synthase is this part. जो head है ना stalk particle का, that head is the enzyme. पूरा स्टॉक पार्टिकल हमारे पास एटीपी सिंथेज नहीं है। द हेड ऑफ द स्टॉक पार्टिकल इज द एटीपी सिंथेज। हमारे पास इस स्टॉक पार्टिकल की एक टेल भी होती है। दैट टेल, यस एग्जैक्टली, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है टोटली। हमारे पास जो टेल है दैट इज अ चैनल प्रोटीन, जिसके थ्रू हमारे पास प्रोटॉन्स मूव कर सकते हैं। इज दिस क्लियर नाउ राहिमा? Yes, Miss. परफेक्ट। ओके, सो वील कीप इट टिल हियर ओनली, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक। ठीक है, कल वी वुड रिकैप द इंटायर रेस्पिरेशन के चारों प्रोसेसेस, एंड वी वुड टॉक अबाउट द नेट यील्ड एंड anaerobic and aerobic respiration. Any questions about today's class? Miss, so it does not have any linkage with ATP synthase, right? Like the stock particle. No, stock particle का जो head है, this head, that is the enzyme ATP synthase। ठीक है। Yeah. और Yes. जो उसका बाकी ये टेल वाला पार्ट है या जो बाकी इंटरनल पार्ट है, दैट इज बेसिकली अ चैनल प्रोटीन जिससे प्रोटॉन्स मूव कर सकता है। ठीक है। सो लेट्स से मैं ड्रॉ करती Okay, हूँ। so until they have gone to ATP synthase, yani the head, it is that chemiosmosis. सो बेसिकली हमारे पास दिस इज द स्टॉक पार्टिकल्स है, या दिस राउंड पार्ट, दिस हेड इज द एटीपी सिंथेस। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है, सही है। दिस चैनल प्रोटीन के थ्रू हमारे जो प्रोटॉन्स हैं दे आर मूविंग। सो द प्रोटॉन्स फ्रॉम अ हाई concentration gradient move all the way down to low concentration gradient। ये क्या हुई? ये हमारे पास facilitated diffusion हुई। Do you all agree? Now, when this facilitated diffusion takes place, मेरे पास this proton is a charged body। मेरे पास जो चार्ज्ड बॉडी होती है उसकी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। When this proton is moving across this channel, इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है that is converted into mechanical energy which causes this dot particle to rotate। जब ये रोटेशन होती है तो हमारे पास ADP and inorganic phosphate combine together to form ATP।
So chemiosmosis is just the facilitated diffusion of proton. This chemiosmosis causes the ATP synthase to combine ADP with an organic phosphate to produce ATP. Is this clear now? Any questions? हमारा आपको आपका आंसर मिल गया या तब कहाँ से किस तरह से मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन आयंस? परफेक्ट. सो आई एम अज्यूमिंग अब सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई हैं. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए वी वेंट ओवर इट ट्वाइस. कल की क्लास में भी हम पहले इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी वुड प्रोसीड, बिकॉज सारे प्रोसेसेस में से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही प्रोसेस है. सो वन बाय वन आई विल आस्क यू गाइस टुमारो कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हो रहे थे, ताकि आप लोगों का भी एक तरह से रिवीजन हो जाए. और अगर मुझे लगेगा किसी की कोई कॉन्सेप्ट एम्बिग्विटी है, सो आई वुड क्लियर इट देयर एंड देन. इज दिस क्लियर? कैन वी कॉल द क्लास ऑफ? मिस, जी. जो हमारे पास एनएडी और एफईडी होता है, डिड वी डू दैट लाइक एज अ सेपरेटली कि उसके जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं? बिकॉज उसका भी मिड्स के अंदर उसका सवाल आया था ना, आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट, इवन तो मुझे पता है वो क्या होता है, लेकिन हम्म. जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे दे वर नॉट इन द मार्किंग स्कीम, बिकॉज मतलब वो 3 मार्क का सवाल था एंड आई डिड नॉट गेन इवन अ मार्क. तो लाइक उसके अंदर कैन वी लाइक गो ओवर दैट अ बिट इन डिटेल कि लाइक उसके अंदर क्या क्या हमें बताना चाहिए व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट लाइक द रोल ऑफ एनईडी और एफईडी, और व्हाट इज दैट? Okay. So in yesterday's class, we basically discussed NAD and FAD का role. So NAD and FAD are coenzymes. अच्छा, anybody who wants to leave the class can leave, ठीक है? I'm not gonna go over anything new. सही है? अच्छा, NAD and FAD. NAD and FAD are basically coenzymes. सही है? Coenzymes जो Yes. होती हैं, they are required for proper functioning of an enzyme. हमारे पास जो NAD and FAD हैं, they are basically coenzymes for dehydrogenases. सही है? तो Okay. हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास ऑब्वियसली हमारे मॉलिक्यूल में, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं क्या होते हैं? कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दैट. दे डेफिनेटली हैव हाइड्रोजन इन देम. सो एक Yes. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मैंने डिहाइड्रोजनेशन कर दी. आई रिमूव्ड हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है? दिस Okay. अकर्स थ्रू in the presence of dehydrogenase. सही है? Now, Yes. this hydrogen atom would split into protons and electrons. The Yes. NADH, sorry, the NAD and the FAD, they accept this proton and this electron and they form reduced NAD and reduced FAD. So ये हमारे पास coenzymes होती हैं which can get reduced. Now इनकी significance क्या होती है respiration में? That we need to know. हमारे पास if you observe जो oxidative phosphorylation का पूरा process था, उसका starting point क्या था? वो स्टार्ट ही तब हुआ जब हमारे पास NADH और FADH2 ऑक्सीडाइज हुए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट? वो इलेक्ट्रॉन्स की कोई सोर्स होनी चाहिए. That source of electrons for the ETC is coming from these electrons and proton carriers, which are NAD and FAD. Are you getting this, Raima? Yes. So these are important to bring, basically NAD and FAD are important to carry electrons and protons to the oxidative phosphorylation wala stage. सही है? Okay. Yes. So And you miss would the say, term coenzyme, I don't hmm, understand that. ओके. हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिनको को एंजाइम्स या को फैक्टर्स की जरूरत होती है. जब तक उनको को एंजाइम या को फैक्टर नहीं मिलता, दे कैन नॉट प्रॉपरली फिट विद देयर सबस्ट्रेट. वो एक प्रॉपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाती जब तक कि उनका को एंजाइम या को फैक्टर आके उस एंजाइम से अटैच ना हो. सो को So it's एंजाइम और the same thing as cofactor. यस, इट्स द सेम थिंग एज फैक्टर. Oh, ठीक है? okay. No, you do not have to know the structures of NAD and FAD, and neither do you need to know their full names. ठीक है?